Hi Kavya, how are you? I'm fine, Avinash sir. How are you? How is everything going? Is everything is fine and okay. Today we talk about the Odisha handloom and its sustainability. So let's first introduce Kavya. Miss Kavya Samal did her graduation in fashion and apparel design from a School of Fashion Technology, Pune, and has 9 years of teaching experience. And the last organization she worked with Wal Academy, Jaipur, and currently pursuing a master degree in fashion design. And before entering into the teaching line, he has worked with so many exports house and retail like Madlama Export. And we know each other quite a long time. So we decided to talk today about the Orissa and the craft. Yes, sir. So let me introduce you too. Yeah, I know Avinash sir since a long time as I was visiting KIT University and he is a faculty there. So he's quite brilliant and he has done his graduation from NIFT Gandhinagar, and then he has done his MBA in fashion management. Currently, he is pursuing for his PhD, and I'm so delighted to be here, sir, with you, and we will be discussing on this beautiful topic called handlooms of Odisha and its sustainability. yeah. So in Orissa, a state, I think each and every district is a rich of different type of colorful craft and handlooms. So we'll first start about the sustainability of Orissa handlooms and the craft of Orissa. So let's discuss first about the craft of Orissa, about the basic. Yeah, so you will be astonished. I mean, if I'll say that there are 43,625 number of crafts that are basically handlooms which are developed in Odisha, and they are specially developed in the rural areas basically. So this is the number that we never think. I mean, people doesn't know about this, but I have gone through a lot of research paper, and what I have found that there are 43,625 types of handlooms in Odisha, and very less are promoted. Very few saris are very popular, as it Okay. is adorned and accepted by every traditional clothing lover, I would say. It has been from ages actually, handloom Yeah, of Odisha. so many Orissa craft is made वो बनाते हैं लॉट जगन्नाथ के लिए. Yes, sir. I'll tell you one important thing in this. Lord Jagannath ka jo, the handloom that he adorns, that is basically done in Nuapatna, which is comes under Cuttack district. And the beautiful part of this handloom is the hymns of Gita Govinda is recited on that sari, and he's the only male god who adorns sari. So both silk and cotton handlooms are developed in Nuapatna. Yeah, so many historical mythologies and culture are involved in this. Yeah, We, even the we, color, the yeah, traditional. through the handicraft, we read lots of things about the Orissa. We can understand lots of thinking about the persons and Orissa people's living and lifestyle. Sometimes they are putting all the lifestyle from a starting lifestyle to the death कैसे कैसे प्रोसेस होता है. और एक Yes, और yes. चीज मैं नोटिस किया हूँ उड़ीसा के हैंडलूम के बारे में. यहाँ की टाई डाई जो मेथड है उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन ये लोग अप्लाई करते हैं दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. And the second piece is it's unique designs created through the artisans and its quality is very superior. उसमें टाइम टेकन बहुत Yes, लगता है और इसे क्वालिटी जो देखते हैं ना वो और कहीं नहीं मिल सकती. It's a unique kind. definitely. And third thing है टसर सिल्क इन उड़ीसा. It's a different kind which is especially कह सकते हैं कि उड़ीसा का बना हुआ है. Yeah, So yeah. we are moved to the different questions and types of handlooms and soft material in the craft in Orissa.
Can you Yes, yes, yes. say it in brief? Yeah. Yes, so I would like to first tell you some popular saris that are very much popular in Odisha. Sorry, Mhm. that is first is Pasapali, that is a checked pattern sari basically, and it is very popular and quite expensive. Here, quite a lot I have seen. Double ikat is mostly preferred under this, and second is the Bomkai. Bomkai is known for its pallu and the border of the sari. If we see the sari, if sari's pallu and the border, they are so classic. They have been contemporized since a long time. It has been being contemporized, but it is the value of classicness is still there. So you can see the border and the pallu, and you can recognize Bomkai. Then comes your Sambalpuri Ikat, which is basically it is owned by mostly, I mean, say mostly it is owned by the people called mehers. I mean, they are the category of people. They are mehers, which they belong to Western Odisha. And Sambalpuri Ikat, I mean, it is not evident, but still, I would like to say about Sambalpuri Ikat. It has also been depicted in Mahabharata, where Draupadi Vastraharan is done. The sari that she was adorning that during that time was Sambalpuri Ikat. So, but there is no any हम्म, specific evidence for the same. और And then Nuapatna Ikat, हम्म, ये सारी तो कोई the भी Nuapatna, पहली बार मैं जब देखा था तो आ, मतलब इट्स वेरी यूनिक। आपका एक बार अगर देख के पहचान लोगे तो आप कहीं भी वर्ल्ड में रहो, आप देखोगे तो समझ जाओगे इस बिलोंग्स टू संबलपुर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सर हमारा नुआपटना इकत के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जो कि विच जगन्नाथ जी को पहनाया जाता है, द थ्री डीटीज ऑफ पुरी, उनको पहनाया जाता है, और कैसे गीता गोविंद का हाइम्स उसमें रिसाइट किया जाता है। And basically, and the last one I would like to say is Habas Puri. That is a traditional cotton handloom. बट सबसे वर्स्ट पार्ट इसका मैं बताती हूँ कि आजकल के वीवर्स दे आर नॉट विलिंग टू कैरी फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर दिस हैंडलूम. आई डोंट नो द रीजन फॉर दैट, but and this textile has come from Kalahandi, ओके। and it is also a beautiful handloom sari. सोचने वाली चीज है कि इतने सारे क्राफ्ट हैं और हैंडलूम्स हैं, तो besides so many government plan is there, still problem facing by the Yes. artisan, how to augment their lifestyle or how to improve the lifestyle of Odisha uh, handloom peoples. हाँ सर, प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले तो मैं बताना चाहूंगी जो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या एमिनिटीज इम्प्लीमेंट किया है, जो कि Hmm. बहुत ही ज्यादा अच्छा है उनके लिए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कोलैबोरेट किया है, उसमें उसमें आर्टिशंस और उनकी फैमिली को लाइफ कवरेज, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है. Hmm. Secondly, the most awakening scheme that had come for the weavers are महात्मा गांधी बंकर बीमा योजना, जिसमें उनको सिर्फ लाइफ कवरेज का ही नहीं मिलता है, इसमें उनके जो बच्चे हैं उनको उनको भी पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट. द गवर्नमेंट Hmm. इनकर्स और एवरीथिंग till class 12, and it also gives scholarship to the children of weavers. बट द Hmm. मिनिमम नंबर उसमें है 2 बच्चों का ही दो वो बच्चे करते थे। हैं. हम्म। एंड द लास्ट, हाँ, फिर लास्ट इज द सीडीपी, दैट इज अ कैटालिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये बेसिकली सेरिकल्चर फार्मिंग की तरफ जाता है. इट्स नॉट हम्म। ओनली फॉर द वीवर्स, बट इट कैन बी ऑल्सो स्टार्टेड बाय एनीवन. बट वीवर्स के लिए ज्यादा अच्छा होता है, सो दैट बिकॉज अगर वो खुद ही फार्मिंग करेंगे इसका और खुद ही सिल्क प्रोडक्शन करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड हम्म। इसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है. अगर आप लोन लेते हैं 20 लाख का, तो 10 लाख का तो सब्सिडी गवर्नमेंट दे देता है. So हम्म। these are quite good schemes which are provided by the um, government. But हम्म। हाँ, लेकिन I think the awareness, basically या awareness जो कि है वो बहुत कम है. हाँ जी, क्योंकि लोगों के awareness हाँ, बहुत कम है. क्योंकि जो सीनियर्स पीपल्स हैं जो
जैसे घर में है दादा दादी हैं या बड़े सीनियर लोग हैं, वो लोग ये चीजें करते हैं। लेकिन अभी स्टिल यंग जनरेशन इज गोइंग टू द डिफरेंट प्लेसेस। किसी किसी घर में तो कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, या कोई इंडिया के बाहर चला गया है। तो वो लोग ये सेम काम करना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको कैसे हम लोग नेक्स्ट It जनरेशन is को। because, sir, think because they don't lead a quality life that an engineer or a doctor, live. That is the main problem. क्यों मैं इसका आपको बताती हूँ, क्योंकि एक तो ये जो वीवर्स हैं, इनकी मैं खुद नुआपाटना गई थी अपने एक काम के लिए। आई वेंट टू नुआपाटना, देयर वर क्लस्टर्स ऑफ वीवर्स, और उस गांव में मैं शाम को पहुंची थी, और शाम को भी वहां पे करंट नहीं था सर। वहां पे करंट नहीं था, वहां पे लैंटर्न लगा करके वो वीविंग करते थे। अगर ये चीज उनके ऑफस्प्रिंग्स देखेंगे, तो सर आई विल डेफिनेटली से दे विल नेवर गो फॉर सच ऑक्यूपेशन इन देयर नेक्स्ट, आई मीन इन देयर लाइफ। उनके उनके पूर्वज भी चाहेंगे ऑफस्प्रिंग्स कि मेरा चाहेंगे। बाल बच्चा तो ऐसे ऐसी लाइफ एग्जैक्टली ना जिए। एग्जैक्टली। दो गवर्नमेंट उनके लिए पक्का घर बनवा चुके हैं, बट मुझे लगता है कि इतने इंटीरियर में हमारे वीवर्स हैं कि शायद वहां पे गवर्नमेंट का वो जो अवेयरनेस पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन नुआपटना इज क्वाइट फेमस, सो मैंने देखा कि उनके लिए घर वर तो सब कुछ ठीक था, बट लॉन्ग टाइम के लिए करंट वरेंट जाना उनके लिए, उनके काम को बहुत हिंड्रेंस मिलता है, और द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज क्वाइट लो। एंड जब मैं गई वहां पर, मुझे एक मीडिएटर मिला, जबकि मैं उसके आई डिडंट नो हिम पर्सनली, बट ही जस्ट पॉप्ड अप देयर एंड ही स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्सेशन विद मी कि आपको क्या चाहिए, मैं आपका वहां करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, मैं उस वीवर से बात करवा दूंगा, जिसकी वजह से हम वीवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हमारा नहीं हो पाता है। एंड द मेजर थिंग इज लिटरेसी। अभी जो वीवर्स हैं उनमें कम लिटरेसी है और नो लिटरेसी है, और इसीलिए इसीलिए हम उनके बच्चों का एक तो पढ़ाई हमको करवाना चाहिए, सो दैट दे आर लिटरेट, एंड वी शुड आल्सो टेल देम हाउ प्रेशियस दे आर, हाउ प्रेशियस दे आर क्राफ्ट, हाँ, एज अ क्राफ्ट्समैन, हाउ प्रेशियस दे आर टू अवर कंट्री। ये अगर हम उनको रियलाइज करा पाए, या हम उनकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा बढ़वा पाए, इन द सेंस, वो तो ऑब्वियसली हम किसी किसी तरीके से बढ़वाएंगे, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़वाएंगे, फास्ट फैशन जो चल रहा है, फास्ट फैशन में कुछ इन्वॉल्व करेंगे। दो कि फास्ट फैशन अभी आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज ग्लोबली इट इज बैड, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन इन इंडिया लाइक कंट्री, ये तो अभी भी चल रहा है। तो हम कैसे उनके फैब्रिक को मास प्रोडक्शन में लेकर के आएंगे ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा मिले, कैसे बायर्स, हाँ, बायर्स उनके लिए बहुत हो, जैसे कि डिजाइनर्स यूज करें उनकी फैब्रिक, तो सर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसमें से बढ़े, और उनकी ऑफस्प्रिंग्स को ये मोटिवेशन मिले कि ये जो कारीगरी इन्होंने सीखा है, उनकी जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, दे शुड कैरी फॉरवर्ड। और बायर्स शुड बी मोर। एक्चुअली बायर लोग बहुत ऐसी ऐसी चीजें नहीं खरीदते जो जल्दी खराब हो जाए, तो वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर लोगों का अवेयरनेस एक्चुअली नहीं है। तो इसलिए वो दे आर नॉट गोइंग टू द सस्टेनेबल फैब्रिक, वो कम चलेगा या फिर उसमें से कलर गिरेगा, ये सब सोच के बहुत सारे लोग नहीं खरीदते हैं। और मेन चीज है कि एजुकेशन नहीं है, मतलब इट्स नॉट इन द ओनली इन द आर्टिजन बट इट्स नॉट इन द कॉमन एग्जैक्टली, पीपल आल्सो। तो मेन थिंग आपकी बातों से बिल्कुल यही बिल्कुल, है कि हमें एजुकेशन ऑफ आर्टिजन इज द मेन प्रॉब्लम। There the education and providing knowledge of artisan is like providing eye opener for artisan. Education is like eye एग्जैक्टली opener. Yeah. तो तो, एग्जैक्टली। तो इसी तरह से एंड सर कॉन्शियस, and sir, as we people, as we, even we are the buyer, I think a conscious buyer होना बहुत जरूरी है आजकल के डेट में। yeah. कॉन्शियस बायर मतलब, मैं जैसे बोल रही हूँ, हु मेड द क्लोथ्स कॉन्सेप्ट जब आया था, इवन फैशन रेवोल्यूशन में भी वो बहुत काफी हाइप हुआ है इस बार लॉकडाउन के दौरान। हु मेड द क्लोथ्स जो है सर, अगर हम इसी तरह हम बोलेंगे हु मेड द फैब्रिक, I Yes, have yes. seen random people getting into the fabric store in Odisha. I am telling you, in the हैंडलूम स्टोर जहाँ पे हैंडलूम फैब्रिक दिया जाता है, वहां पे वो अंदर जाते हैं, तो दे डोंट नो, दे जस्ट नो इट्स हैंडलूम, ये Yes, इतने yes. सालों से चलता आ रहा है, दैट्स व्हाई दे आर बाइंग द फैब्रिक।
but they should know who is the weaver behind, what is the touch, वो फैब्रिक को किसकी टच है, क्या है उसमें, वो फैब्रिक बनाया कैसा है, कैसे गया है, वो यान का जो टच है वो क्या है. आई मीन आई थिंक पीपल शुड बी अवेयर. और मैं आपको बताऊं, ये अवेयरनेस हम सिर्फ हम जैसे लोगों को या हमारे एज ग्रुप में नहीं अवेयर कर सकता. आई थिंक द यूथ ऑफ इंडिया शुड नो एंड टू मेक देम अवेयर. आई थिंक इसमें हमको पहले तो स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में हमको इसको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिसमें ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फैब्रिक, ट्रेडिशनल हैंडलूम्स ऑफ द स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारा लैंग्वेज, जो हमारा लैंग्वेज और लिटरेचर को सस्टेन कराने के लिए हम सारे स्कूल में, जितने भी स्टेट स्कूल है, जैसे ओडिशा का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, मराठी इज इन्वॉल्व इन एवरी महाराष्ट्रियन स्कूल, सेकेंडरी स्कूल. वैसे ओडिशा में भी हमारा ओडिया इज मैंडेटरी इन द सेकेंडरी स्कूल. वैसे सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमको भी टेक्सटाइल्स का कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए सिलेबस में, सो दैट द स्टूडेंट्स, द सेकेंडरी स्कूल students should be aware of our culture, of our handlooms, of our heritage, which actually will boom them up. मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे बोयनिका का नाम है, कलिका का नाम है, तो ये नाम और ब्रांड सुन के लोग ब्रांड के अंदर जाते हैं. व्यूअर्स आर सो मेनी पर बायर आर वेरी लेस, बिकॉज Exactly. अगर वो बड़े लोगों को तो अवेयरनेस नहीं है तो उनके बच्चों को अवेयरनेस कहाँ से होगा. और अवेयरनेस है भी तो सस्टेनेबिलिटी के लिए वो लोग कितना मतलब कितना परसेंटेज उनका सस्टेनेबिलिटी के लिए वो अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और उसको बढ़ावा देने के बारे में सोचते हैं. इस बात पे विचार करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और जब तक हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द किड्स, हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तो इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे तो जानते नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है, तो वो जागरूक कैसे होंगे. They only know what I mean. I have seen students, sir, they only talk about Alexander McQueen, they only talk about, you know, Louis Vuitton, then Gianni Versace and Donatella Versace, but I have never seen them talking about this, the handlooms of India. They are so beautiful. Yeah, even they are not known about the different projects of government, and government is promoting these things. और कुछ कॉलेजेस हैं उसमें बताए भी जाते हैं, फिर भी दे आर, वो इतना डोमिनेट करता है ना वर्साचे और अरमानी और गुच्ची, कि उसके सामने हमारा क्राफ्ट फीका पड़ जाता है कहीं ना कहीं. तो इसमें बहुत सारा रोल ऐसे भी है, जैसे हमारे फैशन लीडर्स जो हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स में, फैशन इन्फ्लुएंसर जो पढ़ते हैं, कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ क्राफ्ट एंड हैंडलूम. So the face of India and celebrity wearing handloom garments should be play a very important role. So we'll discuss something about the celebrity wearing handloom garments which affect the new generation. Bilkul sir, Bilkul sir. I would first like to point out the magazine that we all look for, like Vogue India, LA India, Harper Bazaar. I mean, इसमें मैंने आज तक, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी मैंने आज तक नहीं देखा है, but mostly I have seen the garments worn by the celebrities are not handlooms. Basically, they are from namely designers. I understand if designers have their own choice and own line of working, but I think as the citizen of India also we should think कि इसमें हम कैसे ला सकें, so that cover page पे भी हम कैसे डाल सके. अभी Instagram में मैं Vogue follow कर रही हूँ, मैं Harper Bazaar follow कर रही हूँ, but I have seen none of a celebrity wearing a handloom sari or a handloom garment. It might be contemporized. If a short can be also made of handloom, sir. जरूरी नहीं है कि वो शॉर्ट्स डेनिम की ही हो या कोई दूसरी चिनोज की हो. वो चीज हम, आई थिंक हम ये लैक कर रहे हैं सर. हम लैक कर रहे हैं वहां पर कि हमारी जो फेस ऑफ इंडिया, बिकॉज सेलिब्रिटी एक ऐसे ऐसे मतलब ऐसे चीज है ना इंडिया में, दे कैन एक्चुअली मेक पीपल फॉलो. They actually make people fall in love with them, what they wear, how they live, how they speak. So I mean, they are highly inspirational and people get inspired very easily in India. बट मुझे लगता है जितने भी सेलिब्रिटी हैं, अभी तो काफी कुछ चल रहा है न्यूज में,
तो जितने भी सेलिब्रिटी दे वर्क फॉर द मनी मोर। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं चाइना के प्रोडक्ट को आगे लेके आते हैं और उनको उनको पब्लिसिटी करते हैं, जबकि इंडिया के प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं उनको उसमें कम पैसे मिलते हो या पैसे नहीं मिलते हो, लेकिन वो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए उनको कि हम अपनी चीजों को ज्यादा बिल्कुल सर, बढ़ावा दें और भले उसमें पैसे कम मिले लेकिन हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, लोगों का फ्यूचर ब्राइट होगा। तो वो चीज के बारे में हम लोग नहीं बिल्कुल, सोच पा रहे, कहीं ना कहीं लैकिंग है बिल्कुल, जो हम हमें पैसे के पीछे इतना भागने की जरूरत है कि लोग मेन चीज भूल जा रहे हैं, अपना कल्चर भूल जा रहे हैं, अपनी ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। इवन मैं तो बोलूँगी कि हमारे जो हम एज़ अ डिज़ाइनर जो हर साल में हम डिज़ाइनर स्टूडेंट्स निकलते हैं, हम्म, और मैं उनको सबको मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि आप खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो, यू हम्म, कैन मेक योर ब्रांड्स, बट एटलीस्ट थिंक अबाउट ऑफ इंडियन यूजिंग इंडियन हैंडलूम्स इनटू योर कलेक्शन और समथिंग। आई मीन yeah, दैट विल एक्चुअली ऑगमेंट आवर, एक तो इकोनॉमिक, हाँ, इकोनॉमिक एक तो हमारा बढ़ेगा। जैसे कि अभी तो काफ़ी चल रहा है, हम्म, नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी बोल रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट बढ़नी चाहिए, हमारी उनकी प्रमोशन बढ़नी चाहिए, उसकी यूसेज बढ़नी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा उसमें। और आई थिंक yes, टेक्सटाइल ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन दिस, क्योंकि हम्म, इतने इतने करोड़ों में लोग हैं इस इंडिया में, इतना पॉपुलेशन है। अगर मैं बताती हूँ, अगर ये लोग हमारे हैंडलूम्स खरीदने लग जाएंगे सर, तो हमारी हम्म, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। हम्म। और जैसे हम लोग बहुत सारे क्राफ्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, तो बहुत सारे क्राफ्ट को वी कैन कंबाइन द क्राफ्ट लाइक पिपली इन उड़ीसा का पिपली है, और बहुत सारे क्राफ्ट है ना, जैसे रघुनाथपुर की क्या जगह है, यू नो बेटर, वो सर सारी पटचित्र है, पटचित्र सॉफ्ट है मटेरियल, सॉफ्ट या, मटेरियल। तो उन सारे चीजों को कंबाइन करके वी क्रिएट द न्यू थिंग्स। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर इनका कंटेम्परेरी वर्ज़न आया हुआ है, बट मुझे लगता है ये लैक क्या कर रहे हैं, अगेन दे आर इलिटरेट। सेकेंडली, दे डोंट हैव एनी प्रोफेशनल टू गाइड देम आउट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। और इनका जो सबसे मेन चीज़ है कि ये जो क्राफ्ट बनाते हैं, दे आर क्लासिक प्रोडक्ट, बट ये क्लासिक चीज़ें और नहीं बिकेगी। आई मीन पीपल विल बाय अ चांदुआ, फॉर एग्जाम्पल चांदुआ उन्होंने घर के लिए खरीद लिया। अब चांदुआ तो वो हर साल तो नहीं खरीदेंगे ना। हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं जो कि पीपल कैन बाय एट अ लो कॉस्ट। एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और होना भी चाहिए क्योंकि ये हैंडमेड है, लेकिन हम इसका कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नॉट कि वही चांदुआ, वही जगन्नाथ जी का वो बना दिया हमने। जैसे कि पिपली पिपली हैंडलूम्स में मैंने देखा है, वही जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का एक पोर्ट्रे बना दिया उन्होंने। मतलब वही सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अब अभी अभी अगर हम करते रहे फिर कैसे होगा। वी नीड सम डाइवर्सिफिकेशन। यस, Diversification is will automatically give augment their ये सब economic condition. it's about the VM. VM is not good in the so many craft sector जहाँ पे लोग सेल करते हैं अपना गारमेंट, तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे ध्यान नहीं देते। So हाँ जी, main हाँ जी, aspect हाँ is जी। the visual merchandising, and second is that we can enhance our product, like we can categorize our target market, जैसे होता है जहाँ पे हमको एक टारगेट बना हुआ है कि हमको बूढ़े बुजुर्ग लोग कुछ पसंद करते हैं पहनना या जिनकी एज हो जाती है, तो हम लोग चाहें तो ऐसे बच्चे लोग भी पहनना उनको पसंद करने लगे, और वो बच्चों के हिसाब से भी सोच के बनाया जाए ताकि वो भी इसमें इंटरेस्ट ले सकें, ऐसे कलर यूज किया जाए, ऐसे प्रोडक्ट को उनके हिसाब से बनाया जाए। Design thinking can be improved. We can take the people, the experts, the non-experts, the normal people, yarns, yarn development, yarn dyeing. Everyone we should bring them, and we should actually understand the complex problem that they are facing. And I think we then only we can come to a great solution. I'm very sure. Though design thinking is a very long process, I would say, but I think it will definitely bring some real change to our handloom industry.
to solve a complex problem of the Yeah. stakeholder. तो Mhm. मैं सोचती हूँ कि ये जो स्टेक होल्डर हमारे हैं, उनकी प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने की बहुत जरूरत है। और Mhm. सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं, उनके अलावा और बाहरी जैसे कि हम कस्टमर्स, हमारी प्रमोशंस, हमारे टारगेट मार्केट, द बायर्स, द प्रोडक्ट लाइन, ये सारे एक चेन की तरह बंधे हुए हैं, जिसको Mhm. हम कनेक्ट करेंगे तभी जाकर के कुछ एक सोल्यूशन निकलेगा। और इनका हम एक्चुअली इनका कोई सोल्यूशन निकाल के हम इनकी लाइफस्टाइल बढ़वा सकते हैं, इनकी सेल बढ़वा सकते हैं, नंबर ऑफ बायर्स बढ़वा सकते हैं। So this is how I think there is a future towards this if we do. Yeah. 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 Because the design thinking will implement is a small things also. Like सुबह Yes. उठते हैं तो कोई चीज कहीं रख दिया तो उसके कारण घर में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे उठने के साथ अगर आप पेट सही नहीं करते हो तो उसके कारण आप दिन भर में कितने प्रॉब्लम फेस करते हो। अगर हम उसको सही कर ले प्रोसेस, तो हमारी डिजाइन थिंकिंग घर से आती है और बहुत बेसिक चीजों से आती है। तो अगर हम बेसिक बेसिक चीजों में डिजाइन थिंकिंग अप्लाई करें तो हम ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे कि हमें अच्छी चीजों में और किस चीजों में अप्लाई करना जरूरी है। आज हम लोग इतना पे कुछ कंक्लूजन्स, कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है जो कि इम्पोर्टेंट है। लाइक एजुकेशन ऑफ यंग माइंड टू नो मोर अबाउट क्राफ्ट एंड हैंडलूम, इट्स द फर्स्ट लाइन I think. And second is celebrities should initiate and promoting the indigenous garments or products इन देयर डे टू डे लाइफ। और डे टू डे लाइफ में नहीं होता तो एटलीस्ट जो पब्लिक को फेस करते हैं उस समय उनको यूज करना चाहिए। एक्सपैंड द टारगेट मार्केट फॉर यंग कस्टमर्स and diversification of products, enhancing the visual merchandise of the craft sectors. And category of product is like premium, mass market or low price products should be there so that we can segregate them and every people can go to the showroom and they can able to buy at least one, two products. And Yes. So another point I would like to add, yeah. implementing handlooms into fast fashion, because Hmm. as fast fashion is still on and people are buying clothes the way they used to buy, and if we can fuel up, we if we can actually इसको बहुत इंटेलिजेंटली यूज करना चाहिए कि फैब्रिक अगर हम पूरा नहीं यूज करेंगे तो एक हिस्सा यूज करेंगे, जहाँ पे Hmm. हम एकत की भी प्रमोशन कर रहे हैं, एंड देन वी आर ऑल्सो आई मीन वी आर ऑल्सो कीपिंग द वैल्यू ऑफ आवर इंडियन हैंडलूम्स। तो ये एक चीज है कि अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Now we'll conclude with अभी का जो सिचुएशन है कोविड-19, वो हम लोगों को इतना इफेक्ट कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी को इतना इफेक्ट किया है कि बहुत सारे आपको पता है अरविंद के फिर से कोई न कोई सेक्टर बंद होने वाले हैं। बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे चीजें बंद हो चुकी है और बहुत सारे लोग बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं। तो अगर बिल्कुल इतने बड़े बड़े लोग का ये हालत है तो हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि ये छोटे लोग का क्या हालत हो रहा होगा। और हमें बिल्कुल सोचना, सर। हम लोग को एक्चुअली में सोचना चाहिए कि हाउ टू हेल्प देम इन द फ्यूचर और उसको कैसे सस्टेन रखेंगे। ये तो अभी के टाइम में बोलना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग फॉर समथिंग बट अगर हम सारे लोग मिल के अगर कुछ नहीं करते हैं तो क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। तो बिल्कुल सर। ये काफी इमोशनल चीजें लगता है अगर हम सोचे, अगर थोड़ी देर दिमाग से सोचे। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सोचते हैं तो हमें फील होता है बहुत सारी चीजें कि हम लोग भी कहीं ना बिल्कुल कहीं से कनेक्ट करते हैं कि उसकी जो दुख थी या फिर वो किस कारण से मृत्यु हुई वो तो नहीं पता, लेकिन फिर मेंटल भी स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस अगर सोचे तो इस टोटली एवरीवन शुड कनेक्ट। उसी तरह अगर हम लोग वो बड़े आदमी के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम इन लोगों के बारे में सोचे तो उससे भी ज्यादा बिल्कुल दुखी हो जाएंगे एक्चुअली। तो ये सारी चीजें इतना दुख बिल्कुल बिल्कुल दुख देने वाली चीज है। और अगर हम नहीं सोचे तो अगर सोचने लगते हैं तो एकदम एवरी पीपल लाइक क्राइंग और समथिंग, इमोशनल को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। हम लोग नहीं सोचते हैं कि yeah, we should empathize, we should have empathy for each other,
We should know in what condition they are. I mean, we should help them out as a designers, as manufacturers. जो भी designers अभी कर रहे हैं काम, उनको भी काम देना चाहिए, उनसे फैब्रिक लेना चाहिए, उनसे अगर बड़े-बड़े डिजाइनर्स प्रोजेक्ट उनके साथ करने लगे तो फिर तो आई मीन इट्स अ वेरी आई मीन उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा. एंड इट इज वेरी ट्रू अविनाश सर, जो आपने कहा कि आई गेट समटाइम्स इमोशनल listening to this Sushant Singh Rajput's death, demise, and हम लोग इतने connected. पता नहीं, I was never, sir, I was never, I mean, a big fan of him, but Hmm. it actually affected me somewhere. So Yeah, वो yeah, so that is how अगर अगर ऐसे कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं just because of this लॉकडाउन एंड अर्निंग नहीं है. एंड अगर हम देखें इन आई मीन इन वीवर्स को, तो इनकी कंडीशन तो बहुत ही खराब है, yeah. बहुत ज्यादा खराब है सर. जैसे ना वीविंग हो हम रही लोग होगी. सोचते नहीं है, हम लोग सोचते नहीं है उसके बारे में बिल्कुल. जैसे सुशांत बिल्कुल सिंह बिल्कुल राजपूत नहीं अगर हम सोचते. लोग फॉलो नहीं करते थे, हम लोग को पता नहीं था, लेकिन न्यूज में आया तो पता चला. अगर ऐसी ऐसी न्यूज अगर क्राफ्ट पीपल्स और हैंडलूम के बारे में आए तो हम लोग रोज ऐसी जिंदगी जीना पड़ेगा जिसमें हम लोग सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि जो चीज वो एग्जैक्टली. मीडिया में नहीं आती है और लोग उसको कवर नहीं करते हैं, या उनको कवर करने से उनको फायदा नहीं होगा मीडिया पीपल्स को, they are not getting money or salary. So it's a very very sad कि हम लोग उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, और देख नहीं पा रहे हैं, और हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, और सोच नहीं पा रहे हैं. बिल्कुल 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 सर, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत खराब होगी, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि हम्म, अर्निंग्स नहीं होगी, खाने के लिए नहीं होगा, एंड मेनी थिंग्स सर. हम्म. तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, टाइम भी होने वाला है यार. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much, Avinash sir, for this Thank you for opportunity. coming and accept our invitation to join us, and we'll discuss. It's a very vast thing actually, लेकिन हम लोग Yes, yes. शॉर्ट टाइम में किए, और उससे उड़ीसा का हैंडलूम एंड टेक्सटाइल और ये सेक्टर्स काफी बड़ा है, और इतने सारे बिल्कुल. क्राफ्ट हैं जो हम लोग सोच नहीं सकते, और उसको डिस्कस करना भी पॉसिबल नहीं है एक दिन में, और ये एक 30 मिनट और 40 मिनट में. हाँ सर, बहुत क्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे. I mean, हम सोच भी नहीं सकते. I told you how many handlooms are there. या ओके, थैंक यू काव्या, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग Okay, अस. sir. Thank you so much.